Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a third theory of punishment, that is preventive theory of punishment. So, we are discussing the topic of theories of punishment, which is under the सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। हमने ऑलरेडी पनिशमेंट का इंट्रोडक्शन पिछले दो थ्योरीज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लॉ एंड लॉ विदाउट पनिशमेंट इज हैविंग अ नो यूज। द पनिशमेंट यूज टू सर्व अ डिफरेंट पर्पस फॉर द डिफरेंट accused person. So it is a necessary component of law. Punishment is a necessary component of law, and that's why we are discussing the theories of punishment. Now we will move towards the preventive theory of punishment. देखिए, some form of punishment are designed to protect society from crime. There is a certain form of punishment. The basic reason behind the formation of that particular punishment is to protect society from crime. कि कुछ पनिशमेंट के फॉर्म ऐसे होते हैं कि जिसको चलते हम सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्राइम से। देखिए, द ऑफेंडर आर डिसेबल्ड फ्रॉम रिपीटिंग द ऑफेंस बाय सच पनिशमेंट सच एज इम्प्रिजनमेंट और डेथ। So the providing a certain kind of punishment, we are disabling the offender from the repetition of crime. We are punishing the offender and we are making him disabled to commit another offense. So that is possible only through imprisonment or death penalty. तो अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो हम उसको डिसेबल करते हैं कि वो दोबारा ऑफेंस ना करे। He will be prevented from commission of offense again and again. वो दोबारा ऑफेंस ना करे, और हमको ऐसा करना है तो हम उसको जेल में रखते हैं या उसको डेथ पेनाल्टी देते हैं, जिसके चलते वो जेल में रहेगा तो दोबारा ऑफेंस नहीं करेगा। हम उसको दोबारा ऑफेंस करने से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो ये disabling an offender to commit another offense, that is the main motto of preventive theory. This theory does not act so much on the motive of the wrongdoer but disables his physical power to commit the offense. But the preventive theory doesn't work on the motive of the offender. The offender used to commit an offense, and behind the commission of offense there is a certain motive. But the preventive theory doesn't work on the motive of the offense, but it disables his physical power to commit a crime. तो प्रिवेंटिव थ्योरी क्या करती है? प्रिवेंटिव थ्योरी मोटिव पे काम नहीं करती है। प्रिवेंटिव थ्योरी फिजिकल पावर को डिसेबल कर रही है, मतलब उसको फिजिकली डिसेबल, फिजिकली रेस्ट्रेंट कर रही है दूसरा ऑफेंस करने से। बट अगर मोटिव पे काम होगा कि कुछ ना कुछ मोटिव होता है तभी पर्सन ऑफेंस करता है, अगर हम वो मोटिव को करेक्ट कर देंगे तो पर्सन को भी करेक्ट किया जा सकता है। बट प्रिवेंटिव थ्योरी मोटिव पर वर्क नहीं करती है बल्कि उसकी फिजिकल पावर को डिसेबल कर रही है। मतलब किसी पर्सन ने ऑफेंस किया, हमने उसको जेल में डाल दिया, अब वो जेल में रहेगा, सोसाइटी में वापस नहीं आएगा और क्राइम नहीं करेगा। इन दिस वे वी आर डिसेबलिंग द ऑफेंडर बाय अप्लाइंग द प्रिवेंटिव थ्योरी। This is usually done through prison. और अगर if you want to disable any person from the commission of any offense, then it can be achieved only through prison. ये prison से ही अचीव हो सकता है कि हम उसको जेल में डाल देंगे, जब सोसाइटी में आएगा ही नहीं तो ऑफेंस करेगा कहां से? He will be prevented from commission of offense. So it is usually done through prison. The removal of the criminal from the society protects the public from repeat offense. If we remove the offender from the society, then definitely we can protect the society from repeat offenses. कि अगर हम किसी ऑफेंडर को जिसने ऑफेंस किया हम उसको सोसाइटी से एलिमिनेट करेंगे, सोसाइटी से रिमूव करेंगे उसको, तो सोसाइटी प्रोटेक्ट होगी उसके और ऑफेंस करने से, क्योंकि वो सोसाइटी में रहेगा फिर से ऑफेंस करेगा। तो उसको अगर सोसाइटी से रिमूव करेंगे हम, और सोसाइटी से रिमूव करके हम कहां रख सकते हैं? उसको जेल में। तो जेल में रहेगा तो सोसाइटी में फिर से आएगा नहीं और ऑफेंस करेगा नहीं। देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव थ्योरी इज द कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ अ पर्सन। तो प्रिवेंटिव थ्योरी है
कि सपोज इफ द पर्सन हैज कमिटेड अ ड्राइविंग रिलेटेड ऑफेंस, देन इफ हिज लाइसेंस इज कैंसल्ड, देन ही विल नॉट ड्राइव अगेन इन फ्यूचर, एंड इफ ही विल नॉट ड्राइव, ही विल नॉट कमिट अ ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्राइविंग। तो अगर कोई पर्सन ड्राइव करते करते कोई ऑफेंस करता है और उसका अगर ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल कर दिए तो दोबारा वो ऑफेंस नहीं कर सकता है। इन दिस वे ही मे बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कमीशन ऑफ अनदर ऑफेंस, कि वो दोबारा ऑफेंस करने से हम उसको रोक सकते हैं। प्रिवेंटिव थ्योरी का काम है ये कि वो ड्राइविंग करेगा ही नहीं, विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग करेगा तो वो क्राइम है। जो विदाउट लाइसेंस वो ड्राइविंग कर ही नहीं सकता तो वो ड्राइविंग से रिलेटेड ऑफेंस दोबारा करेगा कैसे, वो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं इन दिस वे। देखिए प्रिवेंटिव थ्योरी के कुछ एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है प्रिवेंटिव थ्योरी का? इफ द क्रिमिनल इज इन जेल दे कैन नॉट रीऑफेंड। प्रिवेंटिव थ्योरी सजेस्ट क्या करती है कि अगर कोई ऑफेंडर ऑफेंस करता है तो उसको जेल में डालो, और जेल में रहेगा तो सोसाइटी में आके दोबारा ऑफेंस नहीं करेगा। तो ये एक एडवांटेज है इस थ्योरी का। इफ क्रिमिनल इज इन जेल, अगर क्रिमिनल जेल में रहेगा दे कैन नॉट रीऑफेंड, वो दोबारा ऑफेंस नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको सोसाइटी में आना पड़ेगा ऑफेंस करने के लिए। अब जब जेल में है तो सोसाइटी में आएगा नहीं और ऑफेंस करेगा नहीं। इस तरीके से सोसाइटी को हम क्रिमिनल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एडवांटेज है प्रिवेंटिव थ्योरी का। सेकंड एडवांटेज, द ऑफेंडर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम देमसेल्व्स, आइदर हार्टिंग देमसेल्व्स और कमिटिंग अनदर क्राइम। बाय प्रिवेंटिव थ्योरी वी कैन प्रोटेक्ट द ऑफेंडर फ्रॉम देमसेल्व्स, उसको खुद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। ये ऑफेंडर के लिए भी बेनिफिशियल है प्रिवेंटिव थ्योरी, क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, या बाहर रहेगा तो और दूसरा कोई क्राइम करेगा, या बाहर रहेगा तो जिसके अगेंस्ट में उसने क्राइम किया था वो उसका बदला भी ले सकते हैं। तो प्रिवेंटिव थ्योरी में हम जब ऑफेंडर को जेल में रखेंगे तो वहां पर हम ऑफेंडर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। ये भी एक प्रिवेंटिव थ्योरी का एडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री ओनर नोटिस लगाता है, आपने देखा होगा, ट्रेस पासर एंड इनकमर्स विदाउट परमिशन शैल बी प्रोसिक्यूटेड। हाउस ओनर displays the notice board, be aware from dogs. It means that no person is entitled to enter into the house without his permission. जब कभी भी कोई फैक्ट्री ओनर होता है, फैक्ट्री ओनर बड़े गेट पे लगाता है कि इनकमर्स और ट्रेस पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, जो विदाउट परमिशन आएगा उस पर केस करेंगे हम, है ना। अगर घर में कुत्ता पाल रखा है तो हम नोटिस लगाते हैं बाहर कि बी अवेयर फ्रॉम डॉग, के अंदर कुत्ता है उससे सावधान रहे बोल के। अब इट मीन्स दैट नो पर्सन इज इंटाइटल्ड टू एंटर इनटू हिज हाउस विदाउट हिज परमिशन। ये नोटिस का मतलब क्या होता है कि विदाउट परमिशन उनके घर में एंट्री किसी को अलाउड नहीं है। अब ये क्या प्रिवेंटिव है ना, कि अगर कोई घर में आने के बाद हम उसको रोकेंगे क्या? नहीं, हमने पहले ही एक प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिया, पहले ही प्रिवेंशन के तौर पे हमने क्या कर दिया कि हमको पता है यहाँ कोई आ सकता है तो हमने पहले ही बोल दिया कि विदाउट परमिशन आने वाले के अगेंस्ट में हम केस करेंगे। इट इज अ प्रिवेंटिव थ्योरी। तो प्रिवेंटिव थ्योरी में भी यहां पर भी वही सिचुएशन है। सिमिलरली पिनल कोड वर्क्स एज अ नोटिस बोर्ड। पिनल कोड जो है वो नोटिस बोर्ड का ही काम करता है। द पीपल मस्ट नोटिस इट्स कंटेंट्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। हमको इंडियन पिनल कोड में पहले और अब बीएनएस आ गया है, हमको पता है कि क्या किए तो क्या सजा हो सकती है। तो पिनल कोड क्या कर रहा है? प्लेस अ रोल ऑफ नोटिस बोर्ड। ये नोटिस बोर्ड है, हमको नोटिस है कि ऐसा करोगे तो ये होगा। मतलब ये प्रिवेंटिव चीजें है कि हमको पहले ही बताया जा रहा है कि तुम ये करो मत, करोगे तो तुमको सजा हो सकती है। एंड इफ एनी वन ऑफ देम वायलेट्स द लॉ दे शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड केप्ट इन प्रिजन। दे वर्क इन प्रिवेंटिव मेजर्स। बताया गया है किसी का मर्डर करोगे तो डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट है, किसी के घर में चोरी करोगे तो 3 साल तक की सजा है, किसी को थप्पड़ मारोगे तो 1 साल तक की सजा है, किसी को रास्ता रोकोगे तो 3 साल तक की सजा है। ये जो है ये प्रिवेंटिव काम कर रही है। हमको ऑलरेडी नोटिस दे दिया वाला है कि तुम ऐसा करोगे तो सजा होगी। मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स इंडियन पिनल कोड लेता है। एडवांटेज है ये। अब डिसएडवांटेज भी प्रिवेंटिव थ्योरी के कोई ना कोई अपने को देखने को मिलते ही है। पहला डिसएडवांटेज है, क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज द सेंटेंस। प्रिवेंटिव थ्योरी क्या सजेस्ट कर रही है कि अगर कोई ऑफेंडर जेल अगर ऑफेंस करता है तो उसको जेल में डालो, वो सोसाइटी में आएगा नहीं और ऑफेंस करेगा नहीं। इस सूरत में सोसाइटी प्रिवेंट होंगी ऑफेंस से। अब यहां पर ऐसा है कि हाउ लॉन्ग इज द सेंटेंस, सजा कब तक। भाई एक ऑफेंस किया, वो ऑफेंस में मैक्सिमम सजा है, उतना ही हम उसको जेल में रख सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम उसको जेल में नहीं रख सकते। तो सजा कितनी लॉन्ग, जितना ऑफेंस उतनी सजा। फिर तो सोसाइटी में आएगा ही वो, और आएगा तो फिर और ज्यादा क्रूर बन के वो ऑफेंस करेगा।
डिसएडवांटेज है। हाउ लॉन्ग इज द सेंटेंस, कब तक हम जेल में रख सकते हैं उसको, एक पर्टिकुलर टाइम तक। द प्रिजनर मे नॉट बी रिफॉर्म्ड एंड रीऑफेंड इन ऑन रिलीज, अगर हम उसको जेल में ही रखेंगे तो वो रिफॉर्म नहीं होगा, वापस आएगा फिर से ऑफेंस करेगा। तो हमको अगर किसी को रिफॉर्म करना है तो हमको उसको कंसेशन देना पड़ेगा। किसी पर्सन को जेल में डाल के हम रिफॉर्म नहीं कर सकते, ये भी एक डिसएडवांटेज है प्रिवेंटिव थ्योरी का। सम क्रिमिनल एंटर्स प्रिजन फॉर माइनर ऑफेंस एंड कम आउट अ हार्डन क्रिमिनल्स ड्यू टू द कॉलेज ऑफ क्राइम। A certain person commits a very less serious offense, and after that the court punish that particular person and they will be in jail. अब जब जेल में रहेंगे तो जब जेल से वापस आएंगे तो वो हार्डन क्रिमिनल्स बन के आ रहे, क्योंकि जब जितना भी टाइम वो जेल में गुजारे तो उन्होंने ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारा कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर थे। उन्होंने हैबिचुअल ऑफेंडर ने उसका माइंड पोल्यूट किया, एक छोटे ऑफेंस के चलते वो जेल में गया और जब बाहर आया तो वही छोटा ऑफेंडर एक हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुका था। डिसएडवांटेज है कि हमको जेल में अगर उसको उतनी देर रखेंगे तो वो और ज्यादा क्रूर बन के निकलेगा। तो प्रिवेंटिव थ्योरी जो सजेस्ट करती है कि ऑफेंस किया तो जेल में डालो, कब तक जेल में डाल सकते हैं हम उसको। प्रिजन कैन मेक ऑफेंडर एंग्री एंड वांट रिवेंज, जितना ज्यादा जेल में रखा जाएगा ऑफेंडर को उससे वो गुस्से में आएगा, and he wants revenge, वो बदला लेने की कोशिश करेगा और बाहर आया तो बदला लेगा। These are the disadvantage of preventive theory of punishment. Protection does not try to see the reason behind the crime. हम जब उसको जेल में डाल रहे हैं ना, हमारा एम ये है कि सोसाइटी को हमको प्रिवेंट करने का है उसके ऑफेंस से, लेकिन हम जब उसको जेल में डालते हैं तो उसने ऑफेंस क्यों किया ये हम ध्यान में नहीं देते हैं। बहुत सी बार ऑफेंस क्यों किया अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो हम वो ऑफेंडर को आसानी से सुधार सकते हैं, बट प्रिवेंटिव थ्योरी इस पर भी काम नहीं करती। ये भी एक डिसएडवांटेज है प्रिवेंटिव थ्योरी का। तो ये थी प्रिवेंटिव थ्योरी जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रिवेंटिव थ्योरी समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।